I take this honor to welcome you all for this wonderful Sunday seminar. We have our special guest today, Sunita Narangji. She is a cardiologist and she has done her schooling from BHU Varanasi, and then she moved to the US for her post graduation. And I will hand it over to Tripurari sir now to take it over. Okay, I will add Sunita ji with me. Thank you for inviting me to this beautiful session hosted by Tripurari Sharma ji and the party. I will just give my brief introduction. I completed my basic medical education at BHU Varanasi, like Apurva said. Then I came to USA to proceed for postgraduate medical training. And I practiced adult medicine with interest in heart diseases and cardiovascular diseases. So today my aim is to bring attention and awareness to all age groups, especially young adolescents and women in particular, who may not have much access to medical knowledge. Let us understand well that the very first indication of heart disease is heart attack without previous history of any symptoms at all. Almost 1/3 of people don't even make it to hospital. So let us see deeper into this scenario. Cardiovascular disease is the leading cause of death all over the world. It is 3 times more prevalent in South Asian population. Today, we see heart attacks in younger age groups, 30 to 40, even younger, like a recent unfortunate event we heard about. 50% of heart attacks in Indians are below age of 50. And that is very, very disturbing figure. So we're going to see here, what are the risk factors, why we are more prone to heart disease and heart attacks. तो यहाँ पे हम एक एक करके रिस्क फैक्टर को देखेंगे ध्यान से, एंड ध्यान से आप सब सुने. सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्पेशली अर्बनाइजेशन. Nowadays, people come home late from work and टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का. हम आकर के हैवी मील खा लेते हैं, and we love to eat fried khana, tala khana, mithai, and elaborate menus are all over weddings, birthday parties, all events. How beautifully decorated elaborate menus we are so attracted by. उसके बाद हम यूजुअली खाना खा के सो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा वेट गेन बढ़ता है, और वेट गेन होने से हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस फिजियोलॉजिकल हो रहे हैं. और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज. We will talk about it in a second. And weight gain से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है. एंड कोलेस्ट्रॉल के भी 3 प्रकार होते हैं. एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL बोलते हैं, और एक होता है लीथल लाइपोप्रोटीन ए कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं. आप अपने अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं. और जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. we women are protected by estrogen until menopause. तो मेनोपॉज के बाद हमारा एस्ट्रोजन लेवल गिर जाता है, जिससे हमारा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीजेस, एंड दैट टू हमारे पास बाकी रिस्क फैक्टर भी हैं, तो दैट विल कंट्रीब्यूट एज वेल. तो थोड़ा सा डायबिटीज पे हम ध्यान करते हैं. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स. नाउ दीज पेशेंट्स हैव एक्सटेंसिव एंड मल्टी वेसल हार्ट डिजीज. डायबिटिक पेशेंट के जो हार्ट डिजीज होती है, जो कि सिम्टम नहीं होते हैं, उनकी डिजीज ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है और ज़्यादा ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज होता है. और जो प्री डायबिटीज सिचुएशन होती है, उन पेशेंट्स का जो डैमेज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन बिफोर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज हैड बीन एस्टैब्लिश्ड. देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अ फैमिली हिस्ट्री. जब फैमिली हिस्ट्री में यंगर एज ग्रुप को हार्ट डिजीज हो चुका है, तो आने वाली जनरेशन्स को ज़्यादा हाई रिस्क होता है. स्मोकिंग, टोबैको यूज, धूम्रपान is extremely high risk factor and is modifiable, जिसको हम आज ही इसी दिन रोक सकते हैं. तो स्मोकिंग बंद करने के बाद आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक significantly goes down, extremely significantly. And let's not forget, स्मोकिंग से बाकी जो डिजीज आती हैं, लंग कैंसर्स, लंग डिजीजेस,
and many other cancers in the body are due to high risk factor of smoking. Another important factor is blood pressure. हम आम जनता blood pressure को कम और मामूली होने पर ध्यान नहीं देते हैं. Remember, blood pressure reading systolic less than 120 and diastolic less than 180 is the goal. And blood pressure के बहुत categories होते हैं, level 1, level 2, level 3, then hypertensive crisis, which you can discuss with your own doctor and see where you fit. And many modern medicines are available, including other preventive medicines, lifestyle modifications we will discuss in a second. Chronic kidney disease is also not very obviously seen. Your annual blood testing should be able to see your kidney status or understand your kidney values are very important. जिन patients को even mild level of kidney disease है, उनका risk of heart disease is high and they have worse outcome. So ये मैंने risk factor briefly one by one discuss करे हैं. और now भैया we can discuss preventive measures. So preventive measures में बहुत important factor है कि lifestyle modification. So number 1 is exercise. We should exercise every day for heart health, or at the most we can do 5 times a week at least 30 minutes of cardio exercise, and brisk walk is extremely valuable and very useful, which we are promoting. The role of yoga, pranayam, meditation has shown to lower blood pressure and lower the sugar levels as well, and reduce the heart disease risk factors. Many studies are showing it. There are ongoing studies which are proving that risk modification can lower our incidence of heart disease. Dietary control. Please avoid the fried khana, tala khana, fast food, mithai intake. Eat healthy snacks. And जो meat lover हैं, they can go for the white meat and fish. I love fish, but I don't eat any kind of meat. Blood pressure control. Please control your blood pressure. देखिए आप किसके लेवल पर आपका ब्लड प्रेशर है, अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करें. Diabetes prevention and management. Various medicines are available. With healthy lifestyle, you can control your diabetes very, very, very well. Awareness is the key here. The more awareness you have, the more you can protect yourself. अभी modern age में हम यहाँ पर अपने USA में जिन patient का risk factor high होता है और जिन पे suspicious होती है कि उनको heart disease की संभावना है, we do a test and we commonly advise that is called CT calcium score to detect early heart disease and blockage, and you can talk to your doctor and go from there. So मैं अभी यहाँ पर विश्राम लूंगी. आपके questions को मैं address करूंगी one by one. If I have made any mistake, I ask for forgiveness. दोस्तों भी आपने बड़ा ध्यान से सुना होगा क्योंकि ज्यादातर ये इंग्लिश में था, और मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि हार्ट की जितनी भी डिजीज हैं उनका सीधा कनेक्शन जो मेरे समझ में आया कि जो लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं या अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं या दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग थोड़े से सावधान होकर के यदि अपना जीवन यापन करते हैं तो वो हार्ट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं, जहां तक मेरे समझ में आया. तो सबसे पहले तो खान पान को लेकर के मैं सुनीता जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन सी स्पेसिफिक फूड है सुनीता जी जो एक इंसान को नहीं खाने चाहिए, यदि वो खाता है तो उसके हार्ट पर कभी भी उसका बैड इंपैक्ट आ सकता है. ऐसे कौन कौन से फूड है, इसकी कोई लिस्ट हो सकती है? जी भैया, सैचुरेटेड फूड, हाई फैट फूड जिसमें कि तला खाना बहुत आजकल चल रहा है. फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर सर्विंग पकौड़े, समोसे, कचौरी, जितने भी फ्राइड फूड है वो सब सैचुरेटेड फैट में आते हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर दे हैव हाई व्हीट कंटेंट, सो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इज we should avoid. That will prevent us from diabetes also. Mithai, sugar intake, we should lower it down. I prefer good eating. I don't go for the white sugar. बहुत ही कम मात्रा में. Honey is an alternative, but again, excessive calorie intake happens from those sugar intakes. So weight gain भी होता है, तो उसमें बहुत ध्यान दें खाने पीने पे. Healthy snacks खाएं, nuts खाएं, fruits, vegetables खाएं. बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल हैं. आप देखें आपके फैमिली में क्या अवेलेबल है.
encourage your family. I make soybean salads, sprouted salads, and I mix the nuts in there. I put a dash of olive oil, I put a dash of honey, and it's so palatable, it's so enjoyable, and I love to serve to my guests also. तो अभी आपके इस बात से मुझे पता लगा कि वाइट शुगर को आपने पॉइंट आउट किया है, और दूसरी चीज आपने पॉइंट आउट की है वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वजन बढ़ने का वाइट शुगर से कोई कनेक्शन है? High calorie intake, less physical activity definitely will raise the weight, elevate the weight. Yes, तो and यदि lack of वेट बढ़ exercise. रहा है, क्षमा कीजिएगा, यदि वेट बढ़ रहा है तो ये वेट बढ़ना क्या दिल के लिए खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल बहुत खतरनाक है। वेट बढ़ने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी शुगर बढ़ेगी, आपकी मल्टी ऑर्गन पे इफेक्ट होगा, आपका जो लीथल lipoprotein A cholesterol level will go high. So silent blockages are going on. Silent activity in multi organs is going on, which you are not aware. तो उस पर आप बहुत ध्यान दें। तो खाने पीने पे ध्यान करें, एक्सरसाइज पे ध्यान करें, वेट कंट्रोल करें, प्री डायबिटीज होने से डायबिटीज पे उस पर अवेयरनेस रहें। तो डॉक्टर साहब, एक मैंने यूट्यूब पर एक चिकित्सक को सुना था, उन्होंने कहा था कि यदि आपकी कमर की साइज 36 हो गई है या उससे ज़्यादा हो गई है तो अब आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो मेरी 38 हो गई है, अभी मुझे क्या करना चाहिए इसके बिल्कुल बारे आपको में? बहुत आप बहुत अपने हेल्थ पे काम करें। आप एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, अपने घुटनों का ध्यान रख के करें, एंड एवरी डे करें। उससे बहुत ही फायदा होता है। एंड नॉट ओनली द फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल पे वी प्रोड्यूस द गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, and we decrease the level of catecholamines, which are stress hormones. And stress hormone, they create other whole entire pathophysiological response on our system. So अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपने डॉक्टर को देखते रहें, अपना ब्लड टेस्ट एनुअल प्रिवेंटिव केयर कराएं। हम लोग एवरी ईयर प्रिवेंटिव केयर में हेल्थ में पूरा ब्लड टेस्ट करते हैं। आप अपने डॉक्टर से चर्चा करें और उनकी एडवाइस को पूरी तरह से मानें। पिछले कुछ दिनों में मैंने दो दो समाचार ऐसे पढ़े जिनको मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाह, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। एक थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक घोड़ी पर जा रहा था व्यक्ति और उसको शादी करने जा रहा था, और नेचुरली ये शादी करने जा रहा होगा तो 25-30 साल का ही होगा। तो उसको घोड़ी पर ही हार्ट अटैक आया और वो घोड़ी पर ही मर गया। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि एक 10th स्टैंडर्ड की छात्रा स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते जाते ही उसको हार्ट अटैक आया और वो ऑन द वे ही गुजर गई। आज से पहले, कुछ समय पहले तक, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले तक हम ऐसी घटनाओं को नहीं देखते थे। अचानक पिछले दिनों में इन घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है डॉक्टर साहब? जी भैया, बहुत बड़ा फैक्टर है कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल जो स्टूडेंट्स में हम देख रहे हैं, 25-30 साल के बच्चों में देख रहे हैं, यंग एजुकेशन स्कूल में देख रहे हैं। और वातावरण घर का कैसा है, हम पूरा खुल के बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हमारा खान पान कैसा है, हमारा वेट कैसा है। तो बहुत सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जिनको पहले कभी सिम्टम था ही नहीं। तो उनमें हमको अवेयरनेस लानी है कि बच्चों अपना ख्याल करो, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर का वातावरण भी थोड़ा चेंज करना, जिसमें हम बच्चों से खुलकर बात कर सकें, ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, promoting them meditation to relax the mind, pranayam, Sudarshan Kriya is very important. To me personally, it has helped me a lot. And I love the Disha Pranayam, जिसमें बहुत राहत मिलती है। मुझे तो बहुत राहत मिलती है। एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उससे हम दिन शुरू करते हैं तो it sets the tone of the day. It takes us to the right direction. सूर्य नमस्कार itself is so powerful. I feel you imbibe the natural जो हमारे में हमारे कॉस्मिक एनर्जी आती है, जिससे हीलिंग होती है। आई फील लॉट ऑफ हीलिंग फ्रॉम दोज नेचुरल रिसोर्सेस। और भाई हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। मुझे थोड़ा उसमें आप माफी चाहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुदर्शन क्रिया का नाम आया है तो मैं अपने सभी दोस्तों को ये कहूंगा कि जल्दी से
अभी यदि हम कहते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति कहता है कि सुदर्शन क्रिया के ये बेनिफिट है, तो शायद आम आदमी को डाइजेस्ट नहीं हो। लेकिन आप ये जरा देखिए, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, और भारत के बाहर अमेरिका जैसे देश के अंदर में अपनी सेवाएं दे करके रिटायर हुए हैं, वो भी सुदर्शन क्रिया को सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट सुदर्शन क्रिया एट ऑल, डू नॉट अंडर एस्टिमेट प्राणायाम एट ऑल, डू नॉट अंडर एस्टिमेट सूर्य नमस्कार इत्यादि जो भी आप करते हैं। तो बी रेगुलर, अदरवाइज हमें फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा एक प्रश्न और भी है, जैसा कि आपने कहा स्ट्रेस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल ऑल एलिमेंट्स, या बीमारियों का मेन कारण स्ट्रेस होता है। तो मेडिटेशन कैसे भूमिका निभाता है इस स्ट्रेस को नीचे ले जाने में? इसके ऊपर में कुछ आपकी राय है तो बताइए, ताकि लोगों को मेडिटेशन के लिए भी हम प्रमोट कर सकें। जी, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद द प्रोफेशनल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, trying to jargon different activities. But when I came to Art of Living, I started practicing meditation, and that did help me a lot. I started feeling more smiley, happier, less angry, anxiety level diminished, my sleep got better. So my personal level पे मुझे बहुत फायदा हुआ है, and जितने भी मेरे friends हैं, family members हैं, वो मेरे में अंतर देख रहे हैं, and they also being attracted कि उनको भी शुरू करना चाहिए, जो उन्होंने अभी शुरू करा नहीं है। तो आप सभी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने नहीं शुरू करा आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। एक क्वेश्चन आया है, इंक्रीज इन हार्ट रेट सडनली मोस्टली स्टार्टिंग फ्रॉम इवनिंग, एंजाइटी, स्लीपिंग प्रॉब्लम, हाई बीपी, 54 ईयर मेल ये प्रश्न पूछ रहा है। इसके ऊपर कोई राय है डॉक्टर साहब आपकी? तो वही है कि दिन भर का पूरा स्ट्रेस लेकर के आप घर आए हैं, आपके मन में, दिमाग में दिन की जो वार्तालाप हुआ है, जो जो स्ट्रेस हुए हैं, जो इवेंट्स में वो चल रहे हैं, आके टीवी ऑन करते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो काफी स्ट्रेस हार्मोन्स आपके एक्यूमुलेट ऑलरेडी हो चुके हैं और बढ़ रहे हैं। तो उसको आप रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी पूजा प्रार्थना करें, हेल्दी स्नैक खाएं, तो दैट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। एंड अपने गुड। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। एक बात मैं आपको बार बार याद दिला दूं, ये प्रोग्राम एक जनरल अवेयरनेस है। यहाँ पर दी गई कोई भी राय मशवरे को आप सीधा अडॉप्ट ना करें। आप यदि किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत डॉक्टर के हिसाब से चलिए। ये सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस है, ये कोई उपचार आपको बताया नहीं जा रहा है, और यहाँ पर बताए गए उपचार विधि को भी आपको फॉलो नहीं करना है। आपको तो आपका जो डॉक्टर कहता है वही करना है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक जनरल अवेयरनेस फैलाना है। आपको किसी भी प्रकार से अपने पुराने इलाज को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, नया इलाज अडॉप्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो भी आपका उपचार डॉक्टर कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहें। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी कोई परेशानी नहीं आई है। यदि वो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो वो परेशानी से बच सकते हैं। मेरे पास एक अगला प्रश्न है, व्हाट टेस्ट आर नीडेड टू डायग्नोज द हार्ट डिजीज? ऐसे कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता लग जाए कि हमारा हार्ट का फंक्शन ठीक है या नहीं? सो बेसिक टेस्ट जो है वो तो ईकेजी हम करते हैं, ऑफिस में करते हैं। ईकेजी से आपको कुछ जानकारी हो सकती है, बट देयर आर मेनी सिचुएशन जहाँ ईकेजी कुड बी टोटली नॉर्मल एंड यू स्टिल हैव सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज। आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिकल प्रोफेशन, लाइफ में देखा है मैंने कि टोटली नॉर्मल ईकेजी है, बट योर क्लिनिकल सस्पिशन इज वेरी हाई। सो आई हैड देम इन्वेस्टिगेटेड एंड इट टर्न आउट दे हैड 99% ब्लॉकेज, एंड राइट टाइम पे इंटरवेंशन करने पर दे वर saved entirely. They got new life and they will not stop saying, oh doc, how did you know it? How did you know it? So वहाँ पे हमारे जो रिस्क फैक्टर है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमको सस्पिशियस हाई, इवन EKG इज नॉर्मल, इफ यू वांट वी गो फॉर द कार्डियक कैथ एंड एंजियोग्राम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन करा था कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग विच इज अ काइंड ऑफ इमेजिंग टेस्टिंग। तो उसको भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। Your doctor, personal doctor, is the best person to evaluate you and guide you at the right time, right moment, right place. Yes. एग्जैक्टली, एक योर और बहुत बड़ी पर्सनल, चीज है हाँ, जो यस, कि हम यस। लाना चाहेंगे कि हर चेस्ट पेन हार्ट डिजीज नहीं होती है। कई बार होता है कि आपको चेस्ट पेन हो रही है, वो हार्ट अटैक नहीं होगा,
नेक पेन, नेक में जो इम्पिंजना होती है, दैट कैन रेडिएट टू द शोल्डर एंड चेस्ट, ईदर साइड। लेफ्ट साइड पे होने पर हमको लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, बट इट कुड बी नर्व इम्पिंजमेंट। शिंगल पेन जो होती है, जिसको हम हर्पी ज़ोस्टर बोलते हैं, वो शिंगल रैश होने के पहले भी आ सकती है, जो हार्ट अटैक नहीं होता है। देन atypical symptom like heartburn. Heartburn is a very important factor. Any heartburn which doesn't get better by simple measures, it could be indicative of underlying heart disease. I have seen patients with heartburn and having heart attack and no chest pain. So heartburn को आप easily मत लें, मत dismiss करें. Chest tightness is important, not the chest pain. So be aware, be cautious, live a healthy life. डॉक्टर साहब का कहना है कि सारे दर्द हार्ट अटैक नहीं होते हैं। कई कई बार गर्दन के अंदर में भी कुछ परेशानी होती है तो वो वाला दर्द शिफ्ट होकर के किसी भी साइड में करने लग जाता है, या कई बार गैस इत्यादि से भी बन जाता है। लेकिन यदि हार्ट बर्न यदि आपको हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि वो साधारण तरीके से दूर नहीं हो पा रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। यदि आपकी ईसीजी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है तो उसे भी एक बार फाइनल ना माने। यदि आपको किसी भी प्रकार का संदेह है तो कुछ और बड़े बड़े टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, कृपया उनको भी करवा लें। मेरा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर हेल्दी हार्ट? वो बताया डॉक्टर साहब ने कई बार कि आपको एक्सरसाइज पर बहुत प्रेफरेंस देनी चाहिए। व्हेन इज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक? अगला प्रश्न है, स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी क्या, कब है, खतरा कब है? Yeah, risk of stroke is high in all those patients who have high risk factors. Blood pressure high होने से रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मेरी अपनी मम्मा को in 50s में she had a very high blood pressure. She collapsed and dropped dead. So उनका blood pressure control नहीं था। तो blood pressure control करना extremely important. And बाकी आपका cholesterol level जो हम बहुत in Western countries we treat with the statins, जो हमारे गुरुजी से आप और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम डिस्कस कर सकते हैं। उस पर मैं I will not make any comments. In my country, not treating statins is a huge malpractice. So I will refrain from that area. And smoking को आपको कम करना पड़ेगा और smoking को quit करना पड़ेगा। And अपना weight तो बाकी जो health risk factor discuss करे हैं, they all reduce the stroke factors as well. थोड़े दिन 2-3 सालों के अंदर में डॉक्टर साहब मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ी, जैसे राजू श्रीवास्तव करके कॉमेडियन थे और एक पुनीत राजकुमार बेंगलोर के कर्नाटका के सुपरस्टार हीरो थे। वो लोग रेगुलर जिम जाते थे, रेगुलर प्रैक्टिस किया करते थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे। उसके बावजूद भी वो एक हार्ट अटैक के अंदर में उनकी मृत्यु हुई। तो क्या कोई जिम में ऐसी एक्सरसाइज डेंजरस हो सकती है, या ऐसा क्या हुआ होगा जो इतनी सुविधाओं के मध्य भी उनको हार्ट अटैक आया? ऐसा क्या कारण रहा होगा कि पुनीत राजकुमार जैसे सुपरस्टार ने, जो कि जिम जा रहे थे रेगुलरली, और राजू श्रीवास्तव भी मैंने उन दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो भी जिम से ही लौटे थे, या जिम में ही उनको दर्द होना शुरू हो गया था। तो क्या जिम में कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके हार्ट पर वेट डालती है और आपके लिए थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है? I cannot say directly कि जिम में ऐसा एक्सरसाइज क्या करा। मे बी उनके ऑलरेडी ब्लॉकेजेस थे एंड द प्लैक रप्चर्ड। जब अंदर आर्टरीज में इंट्राल्यूमिनल लेवल पे आपके जब ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो अगर इवन वो पूरा ब्लॉक नहीं कर रहा है, एक प्लैक अगर रप्चर करता है, इट कैन सडनली ब्लॉक द होल आर्टरी। सो दैट्स साइंटिफिक रीजन। पर कितना एक्सरसाइज करा है, किस लेवल पर है, वो मैं पूरा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेट्स सी। ओके, वंडरफुल। यदि अचानक कोई आदमी को सीने में दर्द होता है और वो बेहोश होने जैसा लगता है, तो उसके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर तो ड्यूटी? सीपीआर का अवेयरनेस बहुत होने चाहिए। हमारे तो हर जगह जगह पे स्टेशन बने हुए हैं एंड हम सबको सीपीआर सीखना चाहिए। कभी ऐसा आपत्तिजनक होने पर हम आगे बढ़ें और हेल्प करें, पीछे नहीं छुप जाना है। कई बार फ्लाइट्स में भी ये अनाउंस होता है कि अगर कोई डॉक्टर हैं तो आगे आए, तो हम वहाँ पे जाते हैं और हेल्प करते हैं। एंड एम्बुलेंस राइट अवे बुलाने को है, जो जो हमारे पास उपलब्ध है।
Aspirin is a very important thing. I don't think people are carrying aspirin with them all the time. Aspirin protects heart to a great extent. Immediate help is needed. Immediate help is needed. We क्या should improve सीपीआर our. सब सीपीआर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सीख सकता है, उसके लिए कोई मेडिकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है? Not at all. We all can learn. सब लोग सीख सकते हैं. बच्चे स्कूल में बच्चे भी सीख सकते हैं. एडल्ट सब लोग सीख सकते हैं. एवरी एज ग्रुप, घर के फैमिली मेंबर सीख सकते हैं. ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगी आज, कि हर भारतवासी को अपने परिवार में एक व्यक्ति को सीपीआर की ट्रेनिंग तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी घटनाएं घट रही है उसमें सीपीआर की ट्रेनिंग को मैं कई बार सोशल मीडिया पर देखता हूं, ऐड वगैरह, पर उनकी ऑथेंटिसिटी पर मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में हमें सीपीआर सीखना चाहिए। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने कही वो कही एस्पिरिन। क्या एस्पिरिन को पॉकेट में लेके घूम सकते हैं हम? Well, usually we don't do that, and हर लोग एस्पिरिन में लेके घूमना भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है. But those जो हार्ट पेशेंट्स हैं, they can do it. दे कैन डू इट। Yes. तो अभी ये प्रश्न आया है कि फर्स्ट एड हो गया, कुल मिलाकर मैंने डॉक्टर साहब से बात की आधी घंटे के अंदर में, ज्यादा, क्योंकि ये विषय ऐसा है इस पर हम ज्यादा एलोबरेट करेंगे तो कई बार वहम भी होने लगते हैं। तो टू अवॉइड दो इल्यूशंस, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक मेरे दिमाग में एक इंसिडेंट बहुत समय से घूम रहा है। 2003 या 4 के अंदर में आई रेड इन न्यूज़पेपर, डॉक्टर त्रेहान वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन एम्स, वन सेड, एक बार उन्होंने कहा कि मैं हर पत्नी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पति को तब तक चाय ना दे जब तक वो प्राणायाम ना कर ले। ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेहान साहब का स्टेटमेंट था इन 2002 और 3 व्हेन आई जस्ट कनेक्टेड टू आर्ट ऑफ लिविंग। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप डॉक्टर साहब की प्राणायाम का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन है? In my opinion, pranayam, meditation, they reduce the heart rate, they reduce the stress level, which definitely has impact on blood vessels. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कैटेकोमीन से ब्लड आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जनरल रिलैक्सेशन हेल्प्स अ लॉट, एंड उस पर आप ज़्यादा एलेबरेट कर सकते हैं. मेरा उसमें अनुभव तो कम ही है. पिछले 5 साल से ही मैं हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, जहाँ मैं सब सीख रही हूँ. आगे मुझे बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है. वंडरफुल, वंडरफुल डॉक्टर साहब बीइंग विद अस। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ज्यादा गहराई में जाने से हमें हो सकता है दर्शकों को थोड़ी सी परेशानी हो जाए, पर आपके इस मार्गदर्शन से हमें उम्मीद है बहुत लोगों को अवेयरनेस आएगी, बहुत लोगों को समझ में आएगा कि हार्ट के मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू विद सो अस। मच. अब मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, तब तक आप विश्राम करें। थैंक यू फॉर थैंक यू. दिस सुपर नॉलेज। थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, आज हमारे साथ सुनीता नारंग जी थी, हार्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने भी एक ही बात पर जोर दिया कि आपको तनाव मुक्त रहने की प्रैक्टिस करनी है, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ को अडॉप्ट करना है, और स्ट्रेस फ्री अडॉप्ट करने के लिए बेस्ट तो सुदर्शन क्रिया से बेस्ट तो कुछ और हो नहीं सकता, है ना। और सुदर्शन क्रिया अपने आप में पूरा पैकेज है, प्राणायाम इंक्लूड है उसके अंदर में, है योगा भी इंक्लूड है उसके अंदर में। तो इसी जगह पर जब हम सुनते हैं एक स्पेशलिस्ट को कि सुदर्शन क्रिया उनको कितनी मदद कर रही है पिछले 5 वर्षों से, और वो कह रही है कि मेरी एज छोटी होती जा रही है, और सच पूछो तो मेरी तो एज बढ़ी नहीं, जिस दिन से मैंने सीखी उस दिन से तो मैं बड़ा हुआ ही नहीं, मैं आज तक युवा हूँ। तो सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, इन सब की प्रैक्टिसेस को आप बिल्कुल ना छोड़ें। हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं जो स्वाति अभी आपको देंगी, तो मैं स्वाति जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के अपनी सूचनाएं प्रदान करें। जय गुरुदेव।
अभी जैसे सुदर्शन क्रिया के बारे में सुने हमने, दीदी ने हमें, सुनीता जी ने हमें बताया कि योगा भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो अभी अपकमिंग वीक में हमारी सुदर्शन क्रिया हैप्पीनेस प्रोग्राम जो आर्ट ऑफ लिविंग की कोर्स होती है वो होने वाली है 27 फरवरी से 2 मार्च। ये डे में 3 शिफ्टिंग में 3 बैचेस में होंगे। आप चाहे तो कोई भी एक बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप लोग कर चुके हैं तो आपकी जो जान पहचान वाले हैं जिन्होंने कोर्स नहीं किया है उन तक ये सूचना जरूर भेजें। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हिंदी और इंग्लिश इसकी माध्यम है, लैंग्वेज माध्यम सुदर्शन हैप्पीनेस कोर्स की। फिर दिन की 10 बजे से 12 बजे, बहुत टाइम लोगों को होता है सुबह वाली टाइम उनके साथ होती नहीं, वो कर नहीं पाते, तो 10 से 12 बजे भी हमारी एक क्रिया कोर्स की बैच डिक्लेयर किया गया है। और शाम की फिर 6 से 8। तो हमारी ये 4 दिन की शिविर है ऑनलाइन माध्यम में, इंग्लिश और हिंदी जिसकी भाषा की माध्यम रहेगी, 27 तारीख से 27 फरवरी से 2 मार्च तक। और हमारी 28 फरवरी से 4 मार्च 5 दिन की एक शिशि योगा की एक शिविर चल रहा है, शुरू होगा। तो वो भी 5 दिन का होगा। उसकी टाइमिंग भी सुबह में है 6 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, तो इसकी लिंक हम लोग भेज देंगे जो लोग इंटरेस्टेड है। और इसके बाद हम लोग आप लोगों को गूगल फॉर्म भी शेयर करेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है तो उसमें अपना नाम, नंबर और आपको कौन सी कोर्स में इंटरेस्टेड है वो आप पंजीकरण कर सकते हैं।